Hello students, welcome back to the site of resonance. In the previous lecture we have studied about the contact forces. We were studying about the types of forces, in which the first one was contact forces. In contact forces we have studied about the normal force, the frictional force and the muscular force. Okay, so three types of forces we have studied in contact forces: muscular force, normal force and frictional force. Now today we will going to start with the non-contact forces. So let us start with or begin with non-contact forces. Now in non-contact forces, the first type of force that we have to study is the gravitational force. What are non-contact forces? First thing, we have studied in the previous lecture that the forces which does not need contact to act between two bodies, that is, they do not need the touch of the two bodies to be acting on one another. The example is gravitational force. I have told you that, let us see, this is a marker. I am holding it in my hand, means there is a force of gravity which is attracting this marker towards the center of the earth, and the force applied by me, which is the that is the muscular force. With help of my muscles I have hold this pen, so it is a muscular force and it is a type of contact force, because if the contact is lost between my hands and the marker, this marker will going to slip down like this. So this marker is going down. It was at rest previously, now it has changed its state of rest, means there must be some unbalanced force which must be acting on this. So this marker is having an unbalanced force acting on it, and that unbalanced force is the attraction of the earth towards its center. The attraction of earth towards its center is known as force of gravity, and that is a type of non-contact force. See, earth is not in contact with this marker, but this marker is moving down. So this type of force in which contact is not required or the touch is not required between the two bodies are known as non-contact force. And in non-contact force we will going to study three type of forces. The first is gravitational force, the second is electrostatic force, and the third is the magnetic force. Now beginning with the gravitational force, what gravitational force is? The discovery of gravitational force or gravitational force was given by Newton. Sir Isaac Newton gave defined this type of force, that is known as gravitational force. Now let us imagine there are two masses. The masses, or you can say there are two bodies, A body and B body, and the masses of these bodies are respectively Ma and Mb. Now these are the masses of these two bodies, that is Ma and Mb, and these are the center of these bodies. These are the center of these bodies, and as these bodies I have taken a regular body, so these are the geometrical center of these bodies you can take. But if the bodies are irregular, then we have to take out the center of mass. That is a different concept that we will going to study in higher classes. Now these are the two bodies A and B, and the masses of these bodies is Ma and Mb. If there are two bodies having masses, then these bodies exert a force on each other, means they exert a force on each other without being getting into touched. मतलब ये दोनों bodies एक दूसरे पे force लगा रही होगी, and that force will be an attractive type, means this body will going to pull this body towards its center, and this body will going to pull this body towards its center. Means two massy bodies attract each other towards their center, and by the force by which they attract each other towards their center is known as gravitational force. That is known as force of gravitation.
this is the force on A due to B, and this is the force on B due to A. These forces are gravitational force. Now listen to me again. Two masses bodies in this universe attract each other towards their center by a force. That force is known as gravitational force, and it is a type of non-contact force because contact or touch is not required between the bodies for this force to be get exerted on each other. हर दुनिया में हर बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाय फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये एफ ए पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है. और ये फोर्स बी पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है. मतलब ये दोनों बॉडी म्यूचुअली एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है बाय फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स मी स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड द camera over there are attracting each other because camera also has a mass and me also has a mass, so we both has mass, so we are attracting each other. Me and this wall are attracting each other because this wall also has a mass and me as a human being also has mass. Any matter, we know that matter is any substance that has mass and occupies volume, means हर matter दूसरे matter को अपनी तरफ attract कर रहा है इस universe में. So there are so many questions that if we are attracting each other, then why we are not getting pulled towards each other, why we are not moving towards each other. First thing to be noted that this force is proportional to the mass. जितना ज़्यादा mass होएगा force उतना ही ज़्यादा लगेगा. And for smaller masses this force is negligible. अगर ये मास बहुत छोटे हैं like my mass or this wall mass that is 60 kg, 80 kg, 100 kg even, 200 kg even, then these forces of gravitation are very small. They are negligible. तो जब ये मास बहुत छोटे होते हैं तो जो फोर्स लगता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है. अब मेरे और कैमरा के बीच में एक नेग्लिजिबल अमाउंट का फोर्स लग रहा है, बट फोर्स तो लग रहा है, और अगर फोर्स लग रहा है तो हम स्लोली एक दूसरे की तरफ एसिलरेट होने चाहिए थे, बट हम नहीं हो रहे. हमको ऐसा ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि केवल एक वही फोर्स नहीं लग रहा. हम आइसोलेटेड नहीं है, हम आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं है. हम एक अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ हम पे फ्रिक्शन भी लगा रही है. क्या लगा रही है? फ्रिक्शन. तो व्हेन आई एम गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स the camera due to the gravitational force, the same amount of friction force is also acting between me and the earth surface. So that friction force is balancing the force of camera, and hence net force on me is zero, so the forces are balanced, and me as an object is at state of rest and will continue to be in state of rest only. तो gravitational force लग रहा है पर दिख क्यों नहीं रहा आदमी के बीच में या किसी और ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास कम है? क्योंकि फोर्स की वैल्यू बहुत कम आ रही है, वो नेग्लिजिबल अमाउंट की है, तो हमको वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा. बट सी दिस मार्कर अगेन, वी कैन ऑब्जर्व दिस फोर्स व्हेन फॉर दिस मार्कर एंड बिटवीन अर्थ. जैसे ही मैंने मार्कर को छोड़ा, मार्कर कहाँ गया? नीचे गिर गया. कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया. तो मुझे दिखा मार्कर एक्सीलरेट होते हुए नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मतलब ये फोर्स ऑब्जर्वेबल हो गया, अच्छे अमाउंट में हो गया, अप्रिशिएबल अमाउंट में हो गया. कब? व्हेन मास ऑफ एनी ऑफ द टू बॉडीज इज वेरी much, that is in great amount. For example, the mass of earth is very large, hence this force becomes appreciable in that case, and hence we can observe the motion of the body or the attractive force which is acting on a body. ये मार्कर को मैंने जैसे ही छोड़ा है, मार्कर क्या हो गया? ड्रॉप डाउन हो गया. दिस मार्कर ड्रॉप्स डाउन एंड हेंस वी कैन ऑब्जर्व दिस फोर्स इफ द बॉडीज आर टू लार्ज. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन ड्यू टू ओनली दिस फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ gravitation. Sun is exerting a force on earth and earth is exerting a force on sun, and due to this mutual interaction between sun and earth is revolving around the sun. The solar system is in a binded state. Why? मतलब बंधा हुआ है एक solar system. क्यों? Due to this force of gravitation. Otherwise the planets would have moved here and there without any certain trajectory or orbits.
Okay, that is known as force of gravitation. Now what is force of gravity? So let us discuss the force of gravity also. Now talking about force of gravity, it is a special case, you can understand like this is a special case of gravitational force in which one body becomes earth. अगर दोनों में से एक बॉडी क्या बन जाए, अर्थ बन जाए, आर अर्थ, दिस इज आर earth and this is a body on this earth. The mass of this body is small m and let us say the mass of this earth is capital M. Now the force acting between these two bodies is a gravitational force, but if one body becomes earth then we have given it a special name, that is the force of gravity. That is the force of gravity. अगर एक बॉडी अर्थ हो जाए इन दोनों बॉडी में से तो हमने उसको बोला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. It is also gravitational force, means force of gravity is a gravitational force, but every gravitational force is not a force of gravity. In common language we generally use the word force of gravity only for gravitational force, but gravitational force means any two bodies having mass attracts each other. But if one body becomes earth, एक बॉडी क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, और अर्थ जब फोर्स लगा रही है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया है. Now if this earth is exerting a force on body, then due to this force there must be some acceleration in this body. So that acceleration due to the force of gravity we have denoted this acceleration with the force of gravity with a small g, with a small g. So acceleration due to force of gravity. First understand what is acceleration due to force of gravity. I am leaving this marker from my hand, this marker is moving down with certain acceleration and that acceleration is constant because the force of gravity is constant on this object for the small heights. That acceleration is known as acceleration due to gravity. If this marker is resting on my palm also, then also it is having an acceleration due to gravity, but that acceleration of gravity, that is due to the force of earth, and that force of earth is balanced by the force of my palm, hence net acceleration is zero, but acceleration due to the force of gravity is there, that is g. मतलब जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसकी वजह से तो इसमें एसिलेरेशन है, बट वो एसिलेरेशन को बैलेंस कर दिया अपवर्ड फोर्स के एसिलेरेशन ने, तो नेट एसिलेरेशन तो जीरो हो गया बॉडी पे. बट देर अगर हम केवल और केवल एक ही फोर्स लें, दैट इज द फोर्स ऑफ अर्थ पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो उसकी वजह से जो बॉडी में एसिलेरेशन आएगा वो एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए होता है. F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है. ए की वैल्यू तो जी हो गई है अगर अर्थ का फोर्स हम ले रहे हैं. तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा m इंटू ए ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी mg. फोर्स ऑफ ग्रेविटी की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, mg वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम वेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेट. आज तक जो आपने पढ़ा समझा वो गलत था. अभी तक आपको क्या पता था, वेट से आपका मतलब होता था कि मेरा वेट 60 kg है, मेरा वेट 45 kg है, मेरा वेट 50 kg. आप यही बोलते थे, आप जाते थे डॉक्टर के पास या फिर कहीं भी जहाँ भी आपने अपना वेट मेजर करा, आप मशीन पे खड़े होते थे और मशीन आपको अपना वेट दिखाती थी. इट कम्स आउट टू बी, लेट अस से इट इज़ 50 kg, इट इज़ 50 kg. तो आप कहते थे मेरा वेट 50 kg है. दैट इज़ इनकरेक्ट. दैट इज़ नॉट योर वेट, दैट इज़ योर मास. दैट इज़ योर मास. सी दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है. अब हमें उसको कंसेप्चुअली समझना है. वी विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन लेमन लैंग्वेज. हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कंसेप्टली चीज़ों को समझेंगे. सी मास क्या होता है, मास इज़ द कंटेंट ऑफ मैटर. मास क्या है, इट इज़ द कंटेंट ऑफ मैटर. बॉडी, हाउ मच मैटर अ बॉडी इज कंटेनिंग इन इट, दैट इज़ द मास. मास इज द कंटेंट ऑफ मैटर. कितना
बॉडी के अंदर मैटर का कंटेंट है वो उसके मास को डिस्क्राइब करता है, दैट इज मास। एंड एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। वेट इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन मास। वेट कुछ अलग ही चीज होती है। वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ इज पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है उसको वेट बोलते हैं। वो अलग चीज़ है और मास अलग चीज़ है। जो आप मेजर करते हो मशीन पे और जो मशीन आपको दिखाती है वो मास है, दैट इज मास, क्योंकि उसकी यूनिट क्या आती है? केजी। वो मास है। वेट है, अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो वेट है। अब ये वेट क्या है? एक फोर्स है, तो वेट की ऐसा यूनिट क्या होगी? वेट की ऐसा यूनिट हो जाएगी आपके पास, जो फोर्स की होती है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। वेरी वेरी गुड। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट हो एज वेल एज डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो। तो वेट को, फोर्स को हमेशा डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने इस डस्टर पे फोर्स लगाया है 2 न्यूटन्स का और मैं आपको बोलूँ अप्लाई अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन दिस डस्टर, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई इट। व्हाई? Because you can apply the force like this, or 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 you can apply in this direction or in this direction or any oblique direction also। आप बहुत तरीके से इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो until and unless मैं आपको डायरेक्शन बताऊं। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो रिक्वायरमेंट है ही सही, एज वेल एज यू नीड द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफाइन फोर्स कंप्लीटली। It won't be a justification to describe a force only with a magnitude। लेकिन मास की बात करूं तो मास स्केलर है। मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप मार्केट में जा रहे हो और वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, इमेजिन यू आर परचेजिंग पोटैटोज एंड यू आर सेइंग गिव मी 7 kg potatoes in east direction। The salesman over there, the shopkeeper will going to laugh at you that 7 kg in east direction is a nonsense statement, because only magnitude is required to define mass। आपने 7 kg बोल दिया, that is sufficient, क्योंकि मास के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड ही नहीं है। आपको डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कोई सेंस ही नहीं बना रही है। आपने बोला 7 kg potatoes, that is more than sufficient to describe mass। but for weight you need direction as well as, so for weight it is a vector quantity whereas the mass is a scalar quantity। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर वो होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो। वेट में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मास में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास इज द कंटेंट ऑफ मैटर, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन बॉडी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। These are the some basic differences between mass and weight। Now to calculate weight, I know यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा weight equals to mg, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये वेट क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। अच्छी बात है। सी मास वोंट चेंज एवर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, टाइम के साथ मास चेंज हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। मेरा भी मास बढ़ा है और कम भी हुआ है। विद टाइम इट कैन चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ मैटर, इफ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड और इट इज इंक्रीजिंग। बट वेट, बट इट वोंट चेंज विद प्लेस टू प्लेस। मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, बट weight will going to change from place to place as the value of g will going to change from place to place। g की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी जगह और जगह। हमने जो अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू मान रखी है एवरेज, दैट इज g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेशन है तो यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने एक एवरेज ले ली। इट वेरीज। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये चेंज होता है जगह से जगह। इक्वेटर पे कम है, पोल्स पर ज़्यादा है। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम होती जा रही है, और अर्थ सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू क्या होती जा रही है बच्चों? कम होती जा रही है। बट हमने क्या करा, फॉर
Making the things easy, we have taken an average value on the surface of earth and that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप अर्थ पे कहीं भी चल जाओ, हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं चीज़ों को आसान करने के लिए। बट आपके मन में ये बात क्लियर है कि जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अर्थ सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमने क्या मान ली, 9.8 मान ली एवरेज निकाल कर। तो हमने मान ली पूरे अर्थ पे जी की वैल्यू सेम है, दैट इज 9.8 फॉर आर सिंप्लिसिटी, बट इट इज वेरिंग दैट वी नो इन आर माइंड्स। Approximately you can take for making your calculation easy as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। अप्रॉक्स आंसर आएगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो अगर आंसर्स में बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं तो आप अप्रॉक्स 10 निकाल कर यू कैन गेट दी करेक्ट आंसर ऑल्सो। और कभी कभी जो आंसर निकले रहते हैं वो 10 से ही निकले रहते हैं। अनटिल अनलेस इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन यूज जनरली यूज 9.8, बट इट इज़ गिवन इफ टू यूज़ 10 देन यूज़ 10। और अगर आपको दिख रहा है ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस है तो आप 10 ही यूज़ करें, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। So that is the value of g and it is an average value for the surface of earth, but it is varying from place to place. तो अगर g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है तो वेट की वैल्यू भी तो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी, क्योंकि m तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इट इज कांस्टेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो इट इज अ कांस्टेंट मींस w is directly proportional to g. From here I will going to get w is directly proportional to g because mass is constant। तो अगर g बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, और g कम होएगा तो वेट भी कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मास इट इज़ कांस्टेंट, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा, लेकिन वेट विल गोइंग टू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट निकालना है तो क्या करना है, मुझे मास को मल्टीप्लाई करना है जी से। मैं अप्रॉक्स वैल्यू 10 लेके चलता हूँ, अगर मेरा मास 60 kg है तो मेरा वेट कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन। सो जो आप आज तक समझते आए, पढ़ते आए या बोलते आए वो गलत था। आप क्या बोलते थे, मेरा वेट कितना है, 50 kg। it is not your weight, that is your mass. Your weight is, if it is 50 kg then your weight will going to become 500 न्यूटन। कितना हो जाएगा वो, अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन आपका वेट आ जाएगा। तो वेट निकालना आपको आ गया है मेरे हिसाब से। क्या करना है, जी से मल्टीप्लाई करना है मास को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा। अब वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ये फोर्स है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। लेकिन मास स्केलर क्वांटिटी है, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, कंटेंट ऑफ मैटर को शो करता है, और इसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, इसकी एसआई यूनिट केजी है। These are the basic differences between mass and weight. I think you have understood the basic difference between mass and weight, and let us move somewhat forward. अब आप एक बात समझें और, कि वेट कैसे चेंज होगा। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। मैंने बताया आपको जी, हाइट बढ़ाओगे अगर अर्थ सरफेस पे, एच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जी विल गोइंग टू डिक्रीज। क्या ये हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ओके। g will going to decrease if you will going to increase the depth। d क्या है यहाँ पर, depth from अर्थ सरफेस। मतलब अगर मैं ज़मीन के अंदर जाऊँगा, मतलब अर्थ के अंदर जाऊँगा और वो अंदर जाता ही रहूँगा, तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर मैं अर्थ सरफेस से ऊपर भी गया तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। g at poles is greater than g at equator। जो पोल्स पे वैल्यू ऑफ g है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ज़्यादा है इक्वेटर से, तो वेट ऑन पोल्स विल बी ग्रेटर देन वेट ऑन इक्वेटर। पोल्स पे हमारा वेट ज़्यादा आएगा और इक्वेटर पे कम आएगा। दिस इज ड्यू टू द फ्लैटनेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पोल्स पे हल्की सी फ्लैट है, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। यू विल गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस दैट व्हाई it is so, but for time being you should remember, due to the flatness of earth on the poles, the gravitation acceleration is greater at poles than at equator, so weight at poles is greater than weight at equator। अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर चल गए तो आपका वेट कम होता जाएगा, और अर्थ सरफेस के नीचे गए तो भी वेट कम होता जाएगा, क्योंकि जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा नोट
जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दैट जी ऑफ मून इज 1/6 जी ऑफ अर्थ। जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून है, दैट इज 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मून पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है अर्थ के कंपैरेटिव? 1/6 हो जाती है। तो वेट मून पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको सीधे के सीधे याद रखनी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होकर आते हैं कि अगर अर्थ पे वेट इतना है तो मून पे कितना है, और अगर अर्थ पे आप इतना जंप कर पा रहे हो तो मून पर कितना कर पाओगे। वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, क्योंकि जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। तो जब हम मून पर जाएंगे तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अब ये समझना, वेट मतलब आप पतले नहीं हो जाओगे, क्योंकि पतला या मोटा होना तो कंटेंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। वो मास है, मास चेंज नहीं होगा चाहे आप अर्थ पे रहो या मून पे रहो। क्या चीज़ चेंज होगी? वेट। मतलब जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही थी, मून उसके 1/6 फोर्स से खींच पाएगा। अगर आप यहाँ पे 9 मीटर कूद पा रहे हैं तो वहाँ पर आप 6 टाइम्स ज़्यादा कूद जाएंगे, मीन्स 9 6 54 मीटर कूद पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी हो गई है? 1/6 हो गई है। वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किस फोर्स से अर्थ पुल कर रही है? तो मून आपको उसके 1/6 फोर्स से ही पुल कर पाता है जितना अर्थ कर पा रही है। ओके, दिस इज वॉट दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसी को हमने बोला है वेट। अब वेट और मास में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। वेट कैसे वेरी कर रहा है विद जी, ये भी मैंने आपको शो कर दिया। Now we will going to start one more unit. We have discussed the two units of forces, that was the SI unit Newton and the CGS unit dyne. Now we will going to start with the gravitational unit. What we will going to start with the gravitational unit? Now look here. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आप ऐसे समझें, पहले तो बताता हूँ है क्या। KGF, इट इज KGF, किलोग्राम फोर्स। दिस इज किलोग्राम फोर्स। एक ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की, इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, दैट इज KGF। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे समझें कि 1 kgf का मतलब होएगा, 1 kgf is going to mean that if we are taking a mass of 1 kg, then how much force earth is exerting on that? And I know that force is equals to mg, force of earth is equals to mg. सो अगर फोर्स निकालना है और मास मुझे 1 kg गिवन है, कितना गिवन है? 1 kg गिवन है, तो g की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 न्यूटन। मतलब 1 kg के ऑब्जेक्ट पर अर्थ 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाती है। तो 1 kgf का मतलब होता है 1 kg के ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है, तो 1 kgf विल बी इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। दिस विल बी इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, क्योंकि 1 kg के ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स निकाला, कितना आया? 9.8 न्यूटन आया, अर्थ ने जो लगाया। तो 1 kgf किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। 1 kgf किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और एक यूनिट होती है 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स का मतलब है 1 ग्राम की बॉडी पर, कितने ग्राम की बॉडी पर? 1 ग्राम की बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी। तो अगर 1 ग्राम की बॉडी पर मैं फोर्स निकालूँ तो मैंने ये ले लिया 1 ग्राम। और लेट अस कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ये ग्राम भी किस में है? CGS सिस्टम में। तो इट विल बिकम 9.8 इंटू 100, दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आएगा, ये आएगा 980 डाइन। कितना आ जाएगा? 980 डाइन। तो 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है?
980 डाइन के बराबर, किसके बराबर होता है? 980 डाइन के बराबर होता है क्या? 1 ग्राम फोर्स. This is known as SI gravitational unit of force and this is known as CGS gravitational unit of force. तो बस आपको ये याद रखना 1 kgf का मतलब कितना फोर्स, 1 kg की बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगा रही किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है. 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है? 980 न्यूटन के बराबर होता है. इसका मतलब होगा 1 ग्राम की बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है. सो दीज आर 2 more units. We have studied 4 units till now, that is the Newton, Dyne, kgf and gf. kgf is the kilogram force, gf is the gram force. इसका मतलब ये होता है 1 kg की बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज 1 kgf, और 1 ग्राम की बॉडी पर कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज 1 ग्राम force. These were the gravitational units of forces. Now let us move a bit forward. Let us move a bit forward and let us study the other type of non-contact force, that is electrostatic force. This was all about the gravitational force till now. Now we are going to study the second type of non-contact force, that is the electrostatic force. Now we know one thing, that there are 2 types of charges. There are 2 types of charges, one is positive charge and the other is negative charge. तो 2 टाइप के चार्ज मेरे पास होते हैं. Two types we are having, one is positive charge and the other is negative charge. 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है. एटम के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं. बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन उस पर उसके चक्कर लगा रहे होते हैं. ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होगी. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? व्हेन 2 चार्जेस आर एट रेस्ट एंड द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दीज 2 चार्जेस, the force exerted by these 2 charges on each other is known as electrostatic force. जब 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. आप ऐसे समझे, the force exerted by the charges on each other and is known as electrostatic force. इसमें भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती. आप ऐसे समझ लें कि कोई चार्ज है ये प्लस और ये भी कोई चार्ज है प्लस, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे. मान लीजिए एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, ये भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे. और आप ऐसा भी मान सकते हैं एक चार्ज माइनस है और दूसरा चार्ज भी माइनस है, तो ये भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे. अब ये जो फोर्स हैं कैसे होंगे? सी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, मतलब बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. बट चार्जेस में द केस इज डिफरेंट. It is not compulsion that they will be attractive force only. It can be repulsive. When the charges are of same type, means if the charges are of same nature, means positive and positive, then the force is repulsive. The force is repulsive. See, they will going to repel each other. They will going to move away from each other. If the charges are of different types, if the charges are of unlike nature, the charges are like, the force will be repulsive. If the charges are unlike, the force will be attractive. And see, negative is a like or unlike type of charges. They are like type of charges, the force will be repulsive. Force will be repulsive. Force कैसा होएगा? repulsive nature का होएगा. तो ये repulsive force होगा और ये भी कैसा force होगा? repulsive force होगा. When the charges are unlike, then the force is attractive, and when the charges are like, the force is repulsive. प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. आपको ये पता होना चाहिए. कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है इन फोर्स, इस टाइप के फोर्स को लगने के बीच में. और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. अगेन अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. This is the basic knowledge of electrostatic force, and we have to remember only this much, and we have to study only this much in electrostatic type of force. Now moving ahead on the second type of force, let us move to the second type of force, and that force is magnetic force. What is that force? Magnetic force. So let us begin with the magnetic force. The third type of force of non-contact nature,
that is magnetic force. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स में होता क्या है आप जरूर देखें। वैसे इतनी बेसिक नॉलेज आपको पता होगी, नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फोर्स मींस मैग्नेट के द्वारा लगने वाला फोर्स। और मैग्नेट से आप सब खेले होंगे अपनी लाइफ में। वी नो मैग्नेट इज चुंबक and we know that magnet attracts species of iron, cobalt, nickel and other magnetic types materials. तो magnet iron, cobalt, nickel और जो बाकी भी magnetic materials हैं, magnetic materials are the materials which get attracted by magnets. तो ऐसे हर टाइप के मटेरियल्स या हर टाइप के मेटल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती, केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। उनके कुछ एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। सो आयरन, कोबाल्ट, निकल को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विदाउट बीइंग कमिंग इन कॉन्टैक्ट। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज मटेरियल्स। मैग्नेट अगर इनकी विसिनिटी में भी हुई और इनसे थोड़ा दूर भी हुई, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट इट विल गोइंग टू अट्रैक्ट दीज materials towards itself. That is by force of magnet. That is by force of magnet and that force is known as magnetic force. इसको क्या बोलते हैं? Magnetic force बोलते हैं. For example, this is a magnet. This is a magnet. And we are having an iron piece. We are having an iron piece. अब ये magnet इसके contact में नहीं है, but it will going to attract this iron piece towards itself. This force is known as magnetic force. This force is known as magnetic force. तो आयरन जो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ, वो जिस फोर्स से हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोला है हमने। क्या बोला है? मैग्नेटिक फोर्स। अब केवल आयरन, कोबाल्ट, निकल या मैग्नेटिक सब्सटेंस ही मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती, मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट। उसके पहले आप ये समझिए, मैग्नेट जो होती है दिस इज मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट कितनी ही छोटी मैग्नेट हो, आप इस मैग्नेट के कितने ही पीसेस कर दो, तो जो भी नई मैग्नेट आएगी, हर मैग्नेट के ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू पोल्स। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल विच आई एम डिनोटिंग विद एन एंड दिस इज साउथ पोल विच इज आई एम डिनोटिंग विद एस। आप ये छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर भी। So we will not going to go in much detail of North Pole and South Pole, but we know that magnet always have two poles. So if there are magnets, I am taking two magnets. A magnetic force will not always be attractive in nature again. It can be repulsive also. We will going to see here. Same thing will going to happen here also. It has been done in charges, like I have told you, in charges, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Same case will be here. This is north, let us say this is south, this is south, this is north, this is south, this is north, this is north, this is south, this is south, this is north, this is south, this is north. अब देखिए क्या होगा अगर ये पोल्स कैसे हैं, लाइक नेचर के हैं, कैसे हैं, लाइक हैं, देन द फोर्स विल बी रिपल्सिव। जो इन पर फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। सो फोर्स कैसा हो जाएगा इनके बीच में? रिपल्सिव। ये मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी, अगर इस लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ हैं तो। यहाँ भी कैसे पोल्स हैं? ये लाइक पोल्स हैं, तो जो फोर्स आएगा इनके बीच में वो कैसा आएगा? रिपल्सिव आएगा। कैसा फोर्स आएगा? रिपल्सिव आएगा। ये इधर रिपेल होगी और ये इधर रिपेल होगी। बट अगर ये पोल्स अनलाइक नेचर के हैं, कैसे नेचर के हैं? अनलाइक नेचर के हैं, तो जो इन पे फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो when the poles are of like nature, the magnets repel each other, and when the poles are of unlike nature, magnets attract each other. तो मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा हो सकता है? रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। यहाँ पे लाइक चार्ज की बात नहीं, यहाँ लाइक पोल्स की बात है। लाइक चार्जेस लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी हैव स्टडीड, was
ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। वो कैसा फोर्स था? अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स था, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर में होता था। ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, इनको भी टच में आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स है। कैसे फोर्सेज है? नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। तो हमने कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेज पढ़े, उसमें हमने 3 टाइप के पढ़े, नॉर्मल, फ्रिक्शनल एंड मस्क्यूलर फोर्स। यहाँ भी हमने 3 टाइप के पढ़े नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। वहाँ कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट थी, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स नहीं लग सकता था, या बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लग सकता है। यहाँ हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। दीज summing up are the types of forces. These are the types of forces. So here we are concluding our chapter and we are finishing it. In next class we will going to discuss some questions, or we will going to start a new chapter of class 8th. Thank you.